السلام علیکم دوستو السلام علیکم دوستو آج ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں زرقا محل کا پارٹ 2۔ اگر آپ نے پچھلا پارٹ نہیں دیکھا تو میں لنک ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، جا کے چیک آؤٹ کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ کیا یار نیٹ ورک ہی نہیں مل رہے یہاں؟ کرسی پر بیٹھے فائز نے افسردگی سے کہا۔ ہاں تو یہاں موبائل ٹاور جو نہیں ہے تو کہاں سے ملیں گے نیٹ ورک؟ اس لیے اب تم چھوڑو اپنے موبائل کا پیچھا۔ حارب نے بیگ میں کچھ تلاشتے ہوئے جواب دیا۔ ہائے کیا نرم گرم بستر ہے، ایسا لگ رہا ہے لمبے سفر سے سیدھا جنت آ گئے ہیں ہم، نوشاد نے بیڈ پر گرتے ہوئے پرکیف انداز میں کہا۔ اور جنت میں حور بھی ہے۔ ٹیبل پر رکھے شوکیس کا جائزہ لیتے ہوئے جواد نے اس کی جانب دیکھ کر دائیں آنکھ دباتے ہوئے معنی خیزی سے بات جوڑی۔ حور نہیں مغرور لگی مجھے وہ، سیدھے منہ بات ہی نہیں کی اس نے کسی سے۔ نوشاد نے ہاتھ کے سہارے سر کو ٹکاتے ہوئے اپنی رائے دی۔ مختصر بات چیت کا مطلب ہر بار غرور نہیں ہوتا، وجہ کچھ اور بھی ہو سکتی ہے۔ تب ہی وہاں زرقا کی سپاٹ آواز بھری جس کے باعث چاروں نے سرعت سے گردن موڑ کر دیکھا تو وہ دروازے پر کھڑی ملی۔ نوشاد ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا اور جواد نے بھی ہاتھ میں پکڑا شوکیس واپس ٹیبل پر رکھ دیا۔ تب ہی نوفل بھی باتھ روم سے باہر آیا اور ماحول کا تناؤ محسوس کرتے ہوئے ناسمجھی سے سب کو دیکھنے لگا۔ کانا لگ گیا ہے ٹیبل پر، آ جائے۔ زرقا اسی انداز اطلاع دی اور پھر واپس چلی گئی، جس پر یہ لوگ کچھ نہ بولے۔ اس نے ہمیں اپنے گھر میں جگہ دی ہے اور تم لوگ اس پر کمنٹس پاس کر رہے ہو، بہت بری بات ہے یہ۔ حارث نے اپنے بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے دونوں کو ملامت کی اور پھر بیگ صوفے پر پھینکتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلا گیا، جس کے پیچھے ہی فائز بھی نکل آیا۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ نوفل نے ناسمجھی سے پوچھا۔ کہنے کو اس وقت ڈرائنگ روم میں 6 لوگ موجود تھے، مگر وہاں صرف کانچ کے برتنوں سے ٹکراتی چمچوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ زرقا سنگل کرسی پر بیٹھی تھی، اس کے بائیں طرف نوفل، نوشاد اور جواد بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ ان کے مقابل یعنی زرقا کے دائیں طرف حارث اور فائز بیٹھے تھے۔ آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہیں؟ فائز نے اسے ٹیبل پر ہاتھ رکھے بیٹھا دیکھ کر بالآخر پوچھ ہی لیا۔ میں یہ سب نہیں کھاتی، اپنے ہاتھ پر نظریں مرکوز کیے اس نے مخصوص انداز میں جواب دیا۔ تو پھر کیا کھاتی ہیں؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ تو بجائے کوئی جواب دینے کے اس نے نظر اٹھا کر فائز کو دیکھا، جس کی بڑی بڑی گہری نیلی آنکھوں سے گھبرا کر اس نے جلدی سے نظر جھکا لی۔ اوئے میں سمجھ گیا، آپ یقیناً ڈائٹنگ پر ہیں، نوفل نے نتیجہ نکالا، جس کا اس نے کوئی تصدیق یا تردید جواب نہیں دیا۔ آپ کی آنکھیں اصلی ہیں یا آپ نے لینس لگائی ہوئی ہیں؟ نوشاد نے کوچتی ہوئی نظر اس کے چہرے پر مرکوز کرتے ہوئے جاننا چاہا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر الٹا سوال کیا۔ سامنے چہرے پر بڑی بڑی گہری نیلی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جس کی وہ زیادہ دیر تاب نہ لا سکا اور نظریں پھیر لیے، اور اس پورے عرصے میں اب پہلی مرتبہ زرقا کے لبوں پر ہلکی سی مسکان ابھری تھی، جس سے تزکیہ عنصر نمایاں تھی، گویا کہہ رہی تھی بس چند لمحے بھی تاب نہ لا سکے اور ان کی اصلیت پر شبہ تھا تمہیں۔ آپ کے گھر میں اور کوئی نہیں ہے کیا؟ اب جواد نے نیا سوال کیا۔ نہیں، ایک لفظی جواب ملا۔ آپ کی فیملی میں کوئی ہے ہی نہیں یا سب کہیں اور رہتے ہیں؟ اس نے دوسری پہلو ٹٹولے۔ وہ سب یہاں سے بہت دور چلے گئے ہیں، بس میں یہاں ہوں۔ اس نے نظریں اپنے ہاتھ پر جمائے ہی سپاٹ جواب دیا، جس کے بعد وہ مزید کوئی سوال نہ کر سکا اور نتیجتاً وہاں پھر خاموشی چھا گئی۔ آپ کچھ نہیں پوچھے گی مجھ سے؟ زرقا نے اب تک خاموشی سے کھانا کھاتے حارث کی جانب دیکھتے ہوئے سوال کیا، تو جواباً حارث نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، میرے ذہن میں جو بھی سوال تھے اس کا جواب آپ ان لوگوں کو دے چکی ہیں۔ اس نے سنجیدگی سے سیدھا سا جواب دیا۔ میں کھانا کھا چکا، بہت شکریہ اتنے اچھے ڈنر کا۔ نوفل نے ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا۔ میں بھی کھا چکا، اب کیا ایک کپ کافی مل سکتی ہے تھوڑی دیر بعد؟ فائز نے بھی کہتے ہوئے عاجزی سے گزارش کی۔ آپ سب کو جو چاہیے یہاں لکھ کر
रख जाएं। मतलूबा चीज आपके कमरे में पहुंचा दी जाएगी। पेन और बुक सामने टेबल पर मौजूद है। इसने कुर्सी पर से उठते हुए संजीदगी से कहा और बाहर की जानिब बढ़ गई, जिसे ये लोग देख कर रह गए और वहां जाते जाते रुकी मगर पलटी नहीं। आप सबको एक साथ एक कमरे में रहने की कोई जरूरत नहीं है। आप सब अलग अलग कमरों में रह सकते हैं। ये घर बहुत बड़ा है। शब बखैर। इसने इजाजत दी थी या हुक्म? जब तक ये समझ में आता वो कमरे से जा चुकी थी, जिसके बायस ये लोग नासमझी से एक दूसरे को देख कर रह गए। खाना खाने के बाद सब लोग दोबारा ऊपर वाले पोर्शन में आकर ज़रका के कहने के मुताबिक अब अलग अलग कमरों में जा चुके थे। एक तो सर्दियों की रात वैसे ही सुनसान होती है, ऊपर से ये जगह कुछ ज्यादा ही वीरान थी, इसलिए ये सन्नाटा काफी पुरस्कार लग रहा था, जिसमें वक्फे से कहीं दूर से आती बेड़ियों की आवाज मजीद खौफ पैदा कर रही थी। क्या मुसीबत है यार, जरा सा भी नेटवर्क नहीं मिल रहा। फाइज अपना मोबाइल हाथ में उठाए बेचैन सा कमरे में टहल रहा था। अब कैसे करूं बात सीमा से? वो तक कर एक जगह रुक कर कुछ सोचने लगा। इतने बड़े घर में लैंडलाइन भी तो होना चाहिए। ख्याल आने पर वो जेर लब बड़बड़ाया और फिर मोबाइल पैंट की जेब में रखते हुए वो कमरे से बाहर निकला। हीटर की गरमाइश वाला कमरा छोड़कर वो जैसे ही बाहर निकला तो सबसे पहला एहसास इसे सर्दी का हुआ, जिसके बायस इसने अपनी फौजी ग्रीन जैकेट की जेब लगाई। लाइन से बने कमरों के सामने ग्रिल लगी हुई थी, जिससे नीचे झांकने पर वो वसी व आरीज हाल नजर आता था, जो इस वक्त बिल्कुल सुनसान पड़ा था। वो ग्रिल पर अपना बायां हाथ नीचे जाती सीढ़ियों की तरफ आया, जिसकी तीसरी उंगली पर इसकी मंगनी की सिल्वर अंगूठी थी और सुस्त रूवी से नीचे उतरने लगा। नीचे आकर पहले इसने लैंडलाइन फोन की तलाश में यहाँ वहाँ नजर दौड़ाई, मगर कोई मुस्बतन नतीजा नहीं मिला। ज़रका से ही पूछ लेता हूँ, वो बड़बड़ाते हुए नीचे पहुँचा। लेकिन इसका कमरा कहाँ है? अगली ही पल इसने खुद से सवाल किया। ढूंढना पड़ेगा, वो कहते हुए एक तरफ बढ़ा और आस पास नजर दौड़ाते हुए वो एक राहदारी में आ गया, जिसके दोनों तरफ तरतीब से कमरे बने हुए थे। वो नासमझी से हर कमरे को देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। तभी एक कमरे का दरवाजा खुला मिला तो वो इस तरफ चला आया। इसने दरवाजे की ओट में बहुत आहिस्तगी से अंदर झांका तो सामने का मंजर देखकर इसे थोड़ी हैरत हुई। अंदर कमरे में ज़रका किसी जवान मर्द के बेहद नजदीक खड़ी थी। इस मर्द ने दोनों बाजू इसकी पतली कमर के गिर्द हमायल करके इसे खुद में पूरी तरह खींचा हुआ था और वो भी दोनों बाजू इसके कंधे पर रखे मुस्कुराते हुए इससे बात कर रही थी। इस शख्स की पुश्त फाइज की जानिब थी, इसलिए वो इसका चेहरा नहीं देख सका। इसे बस ज़रका नजर आई। इसने बताया था कि वो यहाँ अकेली रहती है, तो ऐसे में यहाँ एक मर्द की मौजूदगी, वो भी इतनी नजदीक, कुछ अजीब थी। फाइज ने ये पूछते हुए सिर्फ लम्हे भर को अपनी नजरों का जाविया बदला ही था, मगर दोबारा जैसे ही इसने वहाँ देखा तो अब वो दोनों वहाँ से गायब थे, जिससे वो सख्त हैरान रह गया। अभी वो नासमझी से सब समझने की कोशिश कर रहा था कि इसके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा, जिसके बायस इसका दिल उछलकर हलक में आता महसूस हुआ और वो घबरा कर मुड़ा। पीछे ज़रका खड़ी अपनी सपाट गहरी नीली आंखों से इसे ही देख रही थी, जबकि जिस ज़रका को इसने चंद लम्हे कबल कमरे में देखा था, इसे इतनी जल्दी यहाँ देखकर इसकी आंखें हैरत से फैल गई। आप यहाँ? वो हकलाते हुए वो मुश्किल बोल पाया। कुछ चाहिए आपको? इसका सवाल नजरअंदाज करते हुए वो संजीदगी से पूछने लगी। जी, वो लैंडलाइन फोन ढूंढ रहा था। इसने खुद को नॉर्मल करने की नाकाम कोशिश की। आइए मैं ले चलूं आपको इस तक, वो इसी अंदाज में बोली और पलटकर एक तरफ बढ़ी, जिसके पीछे पीछे वो भी चल पड़ा। वो अभी तक हैरान और परेशान था कि ज़रका कैसे इतनी जल्दी वहाँ से यहाँ आ गई। क्या इसने जिसे देखा वो वाकई ज़रका थी या कोई और? वो इस
इससे इस बारे में पूछे या नहीं। इसी शशुपंज में मुब्तला ज़रका के पीछे चलते फाइज को ये पता ही नहीं चला कि आगे आगे चलती ज़रका के लबों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। ज़रका महल में पहली सुबह इन सब को खुश आमदीद कहा, जिसका नज़ारा करने के लिए हारिब ने अपने कमरे की खिड़की खोल दी और एक ताज़ा हवा का झोंका इसे छू कर गुजरते हुए सरशार कर गया। ओस के बाइस धुंधले नजर आते बुलंद बाला पहाड़ और रिज़्क की तलाश में आसमान पर फैली उड़ते परिंदे। टक 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 तभी दरवाजे पर हुई दस्तक ने इन सब की तवज्जो यहाँ से खींची और वो खिड़की यूं ही छोड़कर दरवाजे पर आया और लाक खोला। सामने ही ज़रका अपने साबिका लिबास व अंदाज में खड़ी थी, जिसे देखकर वो थोड़ा हैरान हुआ। नीचे आ जाए, नाश्ता लग गया है, इसने ठहरे हुए अंदाज में इत्तला दी। सब लोग फिर से ड्राइंग टेबल के गिर्द अपने साबिका जगह पर मौजूद थे। खामोशी भी वैसी ही बरकरार थी और ज़रका भी दोनों हाथ टेबल पर रखे बैठी थी। ये फाइज उठा नहीं क्या अभी तक? जवाद ने कप में चाय निकालते हुए पूछा। पता नहीं यार, मैं तो कमरे से सीधा यहाँ आया हूँ। स्लाइस पर मक्खन लगाते लाइल्मी का इजहार किया। मैं देख कर आता हूँ इसे, हारिब कहते हुए कुर्सी पर से उठने लगा। तुम बैठो हारिब, नौफल जाओ तुम देख कर आओ। नौशाद ने इसे रोकते हुए अपने बराबर में बैठे नौफल को हुक्म दिया। कोई मौका नहीं छोड़ते हैं मुझसे काम करवाने का। नौफल बदमजा होकर बड़बड़ाते हुए उठकर वहाँ से चला गया, जिसके बाद दोबारा वहाँ खामोशी छा गई। रात कैसी गुजरी आप सबकी? ज़रका ने खामोशी को तोड़ा। सोकर जवाद ने शरारत से जवाब दिया। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? जवाद का मजाक नजरअंदाज करते हुए इसने संजीदगी से पूछा। नहीं, पहले इतना अच्छा खाना खिला दिया था आपने, जिसके बाद नरम गरम बिस्तर पर बहुत अच्छी नींद आई और अब इतने अच्छे नाश्ते ने तबीयत फ्रेश कर दी। नौशाद ने बिना बखल के सादगी से कहा। बहुत शुक्रिया इतना सब करने के लिए। हारिब भी इसका शुक्रगुजार हुआ, जिसके जवाब में वो कुछ अजीब सी अंदाज में मुस्कुराई जो तीनों को ही टटका। फाइज भाई तो अपने कमरे में नहीं है। तभी नौफल कहता हुआ वहाँ आया तो सब इसकी जानिब मुतवज्जा हुए। हो सकता है बाथरूम में हो, जवाद ने ख्याल जाहिर किया। नहीं है, वहाँ भी देख लिया मैंने, वो कहते हुए वापस अपनी जगह पर बैठ गया। ये कहाँ चला गया? अचानक नौशाद को भी ताज्जुब हुआ। कहीं वो पागल नेटवर्क ढूंढते ढूंढते तो घर से बाहर नहीं निकल गया। हारिब ने ख्याल जाहिर किया। हो सकता है, जितना वो अपने मोबाइल को लेकर पोजेसिव है ना, तो ये भी हो सकता है, जवाद ने ताकीद की। हाँ, घर में भी वो पता है सबके ज्यादा किसी के करीब है। नौशाद ने कहा। किसके? हारिब ने सबकी तर्जुमानी की। चार्जिंग प्लग के, इसने शरारत से बताया तो ये लोग भी हंस पड़े। चलो नाश्ता करके ढूंढते हैं इस पागल को, फिर हमें यहाँ से निकलना भी तो है, जवाद कहते हुए दोबारा नाश्ते की जानिब मुतवज्जा हो गया, जबकि ज़रका इस दौरान बिल्कुल खामोश थी। ज़रका महल के अतराफ दूर दूर तक कोई दूसरा घर नहीं था, बल्कि खुले इलाके में ये इकलौती इमारत ही खड़ी थी और इससे जरा फासले पर हरा भरा जंगल था। इन चारों से जितना और जहाँ जहाँ मुमकिन था उन्होंने फाइज को ढूंढ लिया था, मगर वो इन्हें कहीं नहीं मिला। वो अलग अलग सिमतों में गए। ये चारों वापस ज़रका महल के सामने आ गए थे। यार, सब जगह ढूंढ लिया मगर फाइज का कोई पता नहीं है, नौशाद ने मायूसी से कहा। ये जगह भी खुली है और आसपास कोई दूसरा घर भी नहीं है कि वो वहाँ चला गया हो, जवाद भी बोला। ये जो थोड़ा दूर जंगल है, मैंने यहाँ भी बैरूनी हिस्से में ढूंढा है इसे, मगर नतीजा सिफर है। हारिब ने भी एक सिमत इशारा करते हुए बताया। दोबारा अंदर चलकर ढूंढे क्या? हो सकता है फाइज भाई किसी और कमरे में जाकर सो गए हों, नौफल ने ख्याल जाहिर किया। ऐसा मुमकिन तो नहीं है, मगर इसके सिवा हम कुछ और कर भी नहीं सकते। चलो एक बार अंदर भी ढूंढ लेते हैं, नौशाद ने कंधे अचकाते हुए ताकीद की, जिस पर रजामंद होने के बाद तीनों दोबारा ज़रका महल के बंद दरवाजे की जानिब बढ़े, मगर इससे कबल के जवाद आगे बढ़कर डोरबेल बजाता दरवाजा खुद बहुत ही अंदर की तरफ खुला, जिसे खोलने वाले ज़रका थी। अब ये लोग हैरान हो रहे थे कि वो दरवाजा खुला छोड़कर वापस अंदर चले
लगी। इन लोगों ने पहले एक दूसरे को देखा और फिर एक एक करके सब अंदर आ गए, जिसके बाद नौशाद ने दरवाजा बंद कर दिया। इन्हें लगा था कि ज़रका यहाँ हाल में होगी, मगर वो तो यहाँ इसके दरवाजा खोलकर पीछे हटने में और इन लोगों के अंदर आने में चंद सेकंड लगे थे, और इस मुख्तसर वक्त में इसका इतनी तेजी से अंदर जाकर गायब हो जाना बहुत अजीब था। नौफल और नौशाद, तुम दोनों नीचे चेक करो, मैं और हारिम ऊपर जाकर ढूंढते हैं इसे नजरअंदाज करते हुए जवाद असल मौजू की जानिब आया। फिर नौशाद और नौफल नीचे अलग अलग सिमतों में चले गए, जबकि जवाद हारिम के संग ऊपर की जानिब बढ़ा। नौफल इसे तलाशते हुए काफी अंदर आ गया था।